ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ماڑی دے قاتلن تے لعنت، سندھن دے قاتلن تے لعنت، بے گناہ شہرین دے قاتلن تے لعنت، سندھن دے قتل عام تے جاری رہے جاری رہندی جنگ اساں جاری رہندی، جاری رہے جاری رہندی جنگ اساں جاری رہندی، جاری رہے جاری رہندی جنگ اساں جاری رہندی۔ محبت گولیوں سے دھو رہے ہو، وطن کا خون ہم سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ خدا کی قسم آپ ان عوام کو عوام نہیں سمجھتے، یہ طاقت کا نشہ ہے، یہ تمہارے عہدوں کا نشہ ہے، یہ بکلا جو کھڑے ہوئے ہیں یہ انصاف کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، بے گناہ سندھیوں کا قتل عام بند کرو، بے گناہ سندھیوں کا قتل عام بند کرو، ایک ایک منٹ سب بولے تاکہ طریقے سے یہ جگہ ٹھیک ہے، یہ جگہ یہاں پہ بولے ایک ایک منٹ اوپر کر رہے ہیں آپ، ایک ایک منٹ ایک ایک منٹ الاؤ جا، ایک ایک منٹ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ریاستی دہشت گردی بند کرو، ریاستی دہشت گردی بند کرو، ریاستی دہشت گردی بند کرو، دہشت گردی بند کرو، ہم نہیں مانتے، تمام مسائل کو بروکار لاتے ہوئے ان تمام چیزوں کو روکے جو ہمارے مذہب کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کے خلاف ہمارا فرض ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس فورم میں اپنی آواز اٹھائیں اور ان کے خلاف ہم مذمت کریں۔ جاری رہے جاری رہندی جنگ اساں جاری رہندی، جاری رہے جاری رہندی جنگ اساں جاری رہندی، جیسی مارا ماری رہندی، دہشت گردن دے کو یارا غدارا غدارا دہشت گردن دے کو یارا غدارا غدارا دے کو یارا باقی تو پیچھے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، کچھ ادھر سے آ جائیں، کرسی میں بیٹھ جائیں، جیسے تمام دوستوں کو شرکت کا موقع مل سکے۔ آپ آگے آ جائیں، یہ بینر کو اوپر آ جائیں، بینر کو اوپر نظر آ جائیں۔
कुर्सी की होना खड़ा है से पहले ये जो दहशतगर्दी है मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए ये नाराबाजी बंद कर दे, जैसे हम अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने मीडिया की तवस्सुत से पेश कर पाएँ। मोहतरम प्रेसिडेंट KBA आमिर सलीम साहब की इजाज़त हो तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मीडिया के मोहतरम दोस्तों, आज आपको यहाँ पे बुलाने का, ज़हमत देने का मकसद ये था कि जो 28 तारीख को सिंध के एक छोटे गांव माड़ी जलबानी तहसील सकरन के अंदर जो वाक़या पेश आया है उसके मुतालिक अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखें और अपना एहतजाज आपके सामने हम रिकॉर्ड करवाएं। शाम के 4 बजे 4 पुलिस की मोबाइलें, 2 वीगो गाड़ियां कलर्ड शीशों के साथ सिंध के गांव माड़ी जलबानी के अंदर दाखिल होते हैं और रेंजर्स की गाड़ियां उनके अलावा थी। ये 4 पुलिस की थी, 2 वीगो थी और 5 या 6 गाड़ियां रेंजर्स की इसके अलावा थी, जिन्होंने आके गांव माड़ी जलबानी को पहले वार्डन किया, उनके दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया, वहाँ पे लोगों को अंदर जाने और बाहर निकलने से मना किया और वहाँ के एक गरीब मिस्कीन काश्तकार जिसका नाम अलादाद है, उसके घर के ऊपर अंदर दाखिल हुए तो अलादाद उसके बेटों ने कहा कि भाई आपको जो आदमी चाहिए, जिसकी आपको तलाश है, जो वांटेड है, आप उसका नाम बताएं, हम पूरे गांव में से आपके सामने पेश कर देंगे। मगर उन्होंने उनकी एक बात नहीं सुनी और अंदर घर के अंदर दाखिल हो गए। जब उन लोगों ने अंदर घर पे दाखिल होने से मना किया और मज़ाहमत की तो इन अहलकारों ने अपने हथियारों के मुंह खोल दिए
ان نہایت بے گناہ معصوم پاکستان کے شہری، سندھ کے شہری، غریب، مسکین، لاچار، بے یار و مددگار، بغیر کسی ہتھیار کے ان لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 5 آدمی موقع پہ شہید ہو گئے، 6 آدمی جن میں 2 بچے، 2 خواتین اور 2 بزرگ شہری ہیں، وہ زخمی ہوئے، جو اس وقت کراچی اور نواب شاہ کی ہاسپٹلز میں زخمی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان لوگوں کی FIR درج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ میں یہ بھی ریکارڈ پہ لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس گاؤں پہ چڑھائی کی گئی اس گاؤں کا نام ہے ماڑی جلبانی، اور اسی گاؤں کے عین سینٹر کے اندر وہاں پہ پولیس اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن کا نام ہے ماڑی جلبانی، وہ سینٹر میں پولیس اسٹیشن ہے، چاروں طرف جو ہے وہ گاؤں کے گھر موجود ہیں۔ جب وہاں پہ پولیس جاتی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جاتے ہیں، تو تھانے پہ رپورٹ نہیں کرتے کہ بھائی ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کس کی گرفتاری چاہتے ہیں، کون وانٹیڈ ہے، اور جا کر لوگوں کے گھر میں گھس کر گولیوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ کارروائی مکمل کر کے لوگوں کو شہید کر کے لوگوں کو زخمی کر کے واپس چلے جاتے ہیں، تو یہ گاؤں کے لاچار اور مسکین آدمی جن کے پاس ایمبولینس کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے زخمیوں کو وہاں سے ہاسپٹل شفٹ کر پائیں، وہ رکشا کے اوپر اور چگچی کے اوپر وہ اپنی چارپائیاں ڈالتے ہیں، اس کے اوپر وہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کی لاشیں اٹھاتے ہیں، اپنے زخمیوں کو ان چارپائیوں کے اوپر ڈال کے وہ سکرنڈ سول ہاسپٹل کے اندر علاج کے لیے لے آتے ہیں۔ نہ تو ان کے پاس وہاں کا کوئی نمائندہ پہنچتا ہے، نہ وہاں کی سول انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر پہنچتا ہے، اور وہاں پہ اتنی خوف اور دہشت کی فضا قائم تھی کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی ان سے یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بھائی ہوا کیا ہے۔ نتیجتاً کمزور لوگ، بے پہنچ لوگ، جن کی کہاں تک کہیں بھی رسائی نہیں ہے، وہ اپنی لاشیں اٹھا کر نیشنل ہائی وے کے اوپر آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، اور انصاف کی توقع کے لیے انہوں نے ابتدا کے لیے جو ڈیمانڈ رکھی وہ یہ رکھی کہ ہماری FIR درج کی جائے۔ ایک رات گزر جاتی ہے، دوسرا دن گزر جاتا ہے، کوئی انتظامیہ، کوئی اہلکار نہ پولیس کی جانب سے آتا ہے اور نہ ہی ریونیو کی جانب سے آتا ہے۔ شام کو ڈپٹی کمشنر نواب شاہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے مطالبات ہم مان لیں گے، آپ یہاں سے دھرنا ختم کر دیں، اور ہم آپ کے لفظ بلفظ جو آپ کا موقف ہے ہم اس کی FIR کروائیں گے، آپ مہربانی کریں یہاں سے آپ اپنی لاشیں اٹھا لیں اور راستہ کھول دیں۔ ان کی یقین دہانی کے اوپر دھرنے کے شرکا جو ہیں وہ اپنی لاشیں اٹھاتے ہیں اور پولیس اسٹیشن ماڑی جلبانی جہاں پہ یہ وقوع ہوا تھا وہاں پولیس اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں، اور ان کی FIR جو ہے ان کی مرضی کے خلاف نامعلوم افراد کے خلاف داخل کر دی جاتی ہے۔ ان سے اب اسی دن
हमारे वजीर आला सिंध और हमारे निगरां सूबाई वजीर दाखिला का बयान आता है कि वहाँ पे दहशतगर्द खुदकश बमबार छुपे हुए थे, जिनको कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करने गए, मुज़ाहिमत हुई और ये वाक़या पेश आया। मैं आपकी तवज्जो से ये एक सवाल पूछता हूँ कि जनाब, जंगल में भी कानून होता है। इस मुल्क के आइन और कानून की वायलेशन जब कानून नाफिज कराने वाले इदारे खुद करेंगे तो उसके खिलाफ आवाज कहाँ जाए? अगर ऐसी इतला है, हम आपकी बात को 2 मिनट के लिए दुरुस्त तस्लीम करते हैं। हमारे निगरां वजीर दाखिला साहब, क्या आपने वहाँ पे कोई कानूनी चाराजोई की? उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की? मुतलका थाने में आपने आमद करवाई? वाक़े के बाद आपने रवानगी कराई? अगर ऐसा ही हुआ है, लोगों ने मुज़ाहिमत की है, आपके बंदे कहते हैं कि जख्मी हुए हैं, तो क्या आपने उन जख्मियों की FIR वहाँ मुतलका थाने में कराई? अगर नहीं कराई तो इसके पीछे ये नज़र आता है कि आपने हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की है। और जो लोग इस वाक़ये के अंदर शहीद हुए हैं, मैं आपकी तवज्जो से इस दुनिया के सामने ये रखना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ आज तक एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है, कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनके खिलाफ FIR नहीं है, कोई चालान नहीं है। बेगुनाह मासूम पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल करना और उसके बाद उनकी कत्ल की FIR दाखिल ना करना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि ना तो ये 70s का दौर है, ना ये 80s का दौर है, जब MRD की तहरीक में चांडियों के गांव के ऊपर नौशेर फिरोज में चढ़ाई की जाती है, मासूम लोगों को शहीद किया जाता है। ये दौर वो दौर नहीं है। ये 90s का दौर भी नहीं है, जब टंडो बहावल के अंदर चढ़ाई की जाती है, वहाँ पे लोगों को शहीद किया जाता है। ये 2023 है, यहाँ पे मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया का दौर है। लोग घर से सैकड़ों चैनल्स टीवी के देखकर बाहर निकलते हैं। हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी जो है सोशल मीडिया को अपलोड करता है। तो आप ये मत समझें कि ये जो हालात हैं, ये जो वाक़यात हैं, ये छुप जाएंगे, और ये जो कत्लेआम है और ये जो लोगों को जख्मी किया गया है, ये जो लोगों पे चढ़ाई की गई है, ये जो मासूम शहरियों का कत्लेआम हुआ है, इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं होगी। जरूर होगी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए एक मशल राह है। उसका नाम है माई जिंदो चांडियो। जिस माई जिंदो ने ये साबित कर दिखाया कि अगर आप हक पे हैं, आप सच पे हैं और आप इंसाफ चाहते हैं और आप पुरअमन जदोजहद करते हैं, तो कातिलों को सजा जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरे ये जो भाई दाएं हाथ पे बाएं हाथ पे खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, हम तमाम आप दोस्तों के सामने ये आज अहद करते हैं कि इन लोगों के कातिलों को जब तक सजा नहीं मिलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम कानूनी चाराजोई के लिए हर हद तक जाएंगे। हम पुरअमन जदोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं। हम कानून पसंदर पाकिस्तान के शहरी हैं। हम कानून पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं। मगर जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को पायमाल किया,
जिन लोगों ने ये बर्बरियत की, जिन लोगों ने ये कत्लेआम किया, जिन लोगों ने लोगों को जख्मी किया, लोगों के घरों पे जाकर चढ़ाई की, उन लोगों के लिए जो हमें कानून रास्ता अख्तियार करता है, देता है, हम उसको साथ चलेंगे। हम इनके लिए FIR जो हकीकी FIR है, जिसके अंदर जो लोग मुलविस थे वो नॉमिनेटेड FIR की कोशिश करेंगे, कानूनी चाराजोई करेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन माड़ी के शहीदों के खून के साथ इंसाफ नहीं होता। हमारी तमाम तर जितनी लीगल बार एसोसिएशंस हैं उनको फ्री ऑफ एड बगैर किसी मुआवजे के कानूनी मुआवजत देंगे और उनका केस हम शुरू से लेकर आखिर तक लड़ेंगे। और हमारी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि ये जो हमारे हकायक हैं इनको दुनिया के सामने पेश किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि ये जो लोग शहीद हुए हैं ये बेगुनाह थे, ये मासूम थे, ये क्रिमिनल्स नहीं थे और इनके खिलाफ कोई भी कानूनी चाराजोई, किसी कोर्ट के अंदर कोई FIR, कोई चालान, कोई ट्रायल नहीं था। तो किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाई जाएं, उनको शहीद किया जाए, उनको जख्मी किया जाए। हम उसकी मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हम आज शाम को प्रेस क्लब के सामने भी अपना मुजाहरा करेंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर जी। और इसके साथ साथ कल जो वाक़यात हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर, हंगू में और मखदूम के अंदर, जिसके अंदर बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम हुआ, जिस ब्लास्ट के अंदर 55 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं मखदूम में और हंगू में 5 लोग शहीद हुए हैं, हम उनकी भी मजम्मत करते हैं। हम इस दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। हम जो दहशतगर्द अनासर के पीछे छुपे हुए हाथ हैं, हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि इनको मंजर-ए-आम पे लाएं, इन कातलों को गिरफ्तार करें और इसको यकीनी बनाएं कि ऐसे मौके दोबारा ना हो। सर एक और बात को कंडेम करें, यहाँ पे उर्दू मीडिया के दोस्त भी हैं जो कि एक तरफ मीडिया है, इन्होंने कोई कवरेज वहाँ पे नहीं की। जो सकरन में इतना बड़ा वाक़या हुआ उर्दू मीडिया की तरफ से कोई कवरेज नहीं की गई। हुई है कोई कवरेज जी जी सवाल एक मिनट भाई, खामोश। मोहतरम भाई का सवाल है कि मजलूम फैमिली की जानिब से आपसे कोई मुतालबा किया गया? जी बिल्कुल। मैं आज सुबह ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल में अल्लाहदाद जलबानी के पास गया हूँ, जो कि इस वक्त जख्मी हालत में है, जिनको गोली लगी हुई है, इस तरफ से लगी है, उधर से निकल गई है। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में बेड पे पड़ा हुआ है। उसके 2 बेटे शहीद हो चुके हैं, उसकी फैमिली के 6 आदमी जो है वो जख्मी हैं, इंक्लूडिंग उसका कहना यह है कि हम पुरअमन शहरी हैं, हम कानून पे यकीन रखते हैं। हमारे गांव के बीच में थाना है माड़ी जलबानी। अगर किसी को भी किसी आदमी की जरूरत थी, कोई वांटेड था किसी इंक्वायरी में, किसी इन्वेस्टिगेशन में, किसी केस के अंदर, वो थाने वाले के कहते हम खुद उनको पहुंचा के दे दे। और उनकी औरतें जो जख्मी हैं वो भी इस वक्त नवाब शाह के हॉस्पिटल में जेर इलाज है, बच्चे भी जेर इलाज है। आप यकीन जाने कि उनके बेटों की शहादत की उनको हमने खबर भी नहीं दी अभी तक, कि ऐसा ना हो कि ये इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और ये भी चल सके। जलवानी साहब, ये जो FIR करती है, क्या वो लवाकिन जो है वो उस FIR के कंटेंट से सेटिस्फाई है, या आप एज ए सीनियर एडवोकेट आप उस FIR को बढ़ाए कि वो FIR जो है वो एज पर फैक्ट कट गई है? मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बता चुका हूँ, मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि अल्लाहदाद जलबानी का कहना था कि ये हमें कहा गया कि हम आपकी मर्जी के मुताबिक FIR दाखिल करेंगे, आप लाशें यहाँ से उठाएं, हमारे साथ थाने पे चले।
जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने अपनी मर्जी की नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके हमारे लड़कों से दस्तखत ले लिया। हमारे यह मौक़िफ़ नहीं है। अच्छा सर, जो निगरान हुकूमत की जानिब से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, क्या आप उससे भी मुतमईन हैं कि वो कमेटी जो है फैक्ट फाइंडिंग करके असल जो कल्पर्ट्स हैं उनको सजाएं दे पाएगी? देखिए, ये होता है सेकेंडरी काम, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ये सेकेंडरी काम होता है। बेसिक तो ये होता है कि मुद्दई जो कंप्लेनेंट है उसका मौक़िफ़ तो आए, उसके मौक़िफ़ को भी आप FIR की शक्ल में नहीं लेना चाहते हैं, जो वो कहना चाह रहा है, तो आगे क्या करेंगे आप? इंक्वायरी किस पे होगी? इसी FIR पे होगी जो नामालूम अफराद के खिलाफ है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि इसके अंदर कौन कौन मुलविस था, कौन कौन आया है, मगर वो मौक़िफ़ जो है FIR की सूरत में लेने को तैयार नहीं। अच्छा जलवानी साहब, FIR से ना मुद्दई से पूछा नहीं गया, ना वो मुतमिन है ना आप लोग मुतमिन है। क्या फैक्ट फाइंडिंग के लिए सिंध बार काउंसिल का कोई मुश्तरका एक डेलीगेशन वहाँ जाएगा? देखिए, बात ये है कि फैक्ट्स फाइंड करना, मामलात को इन्वेस्टिगेशन करना, क्राइम की तह तक जाना, क्रिमिनल्स को जो है वो अदालत के कटघरे में लाना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि देखें, हम एक सिंध की नुमाइंदा वकला की तंजीम होने की हैसियत से आज पूरे सिंध के अंदर एहतजाजन स्ट्राइक की काल भी है, अपनी पुरअमन जदोजहद को जारी रखेंगे। ये ज़रूर है कि ये जो वक़्वा हुआ है इसकी कानूनी मदद के लिए सिंध बार काउंसिल के वकला मौजूद रहेंगे, वो चाहे सकरन की अदालत हो, वो चाहे नवाब शाह की अदालत हो, वो चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। हम आपकी तवज्जो से आपके सवाल को आगे रखते हुए ये मुतालबा करते हैं कि जनाब आला इस वाक़े के लिए जुडिशल कमीशन का एक बनाया जाए, जो जुडिशल कमीशन इस बात के तह तक पहुँचे कि इसके सबब क्या थे, क्यों ये लोग मारे गए, कौन कौन लोग इसके अंदर मुलविस हैं, किसका क्या कसूर है। जुडिशल कमीशन के ऊपर तो हमें एतमाद है, जो जज इसकी इंक्वायरी करेगा उसके ऊपर हमें एतमाद है, मगर इस वक्त जो निगरान हुकूमत की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है इसके ऊपर हमें इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। जो CM साहब हैं वो भी आपकी बिरादरी से, जो निगरान CM, तो आप इंसाफ की तवक्को है उससे? आप देखिए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, काले कोर्ट के साथ जो है वो पहले वकील थे, फिर जज बने, फिर वापस वकील आ गए। हम उनके लिए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर बात यह है कि ज़बान से ज्यादा एक्शन बताता है। ज़बानी कलामी से काम नहीं चलने वाला, ये आम मामला नहीं है, ये लोगों का कत्लेआम का मामला है। इसके ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर निगरान को चाहिए कि वो ये दिखाएं कि जो इसके अंदर पुलिस के अमलदार मुलविस थे उनको सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें, ताकि ये आइंदा मैसेज जाए कि कोई भी अहलकार लोगों को कत्ल न कर सके, उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई जाए। जब तक ये अमल नहीं होता हम कैसे मुतमिन हो जाएं, हम कैसे यकीन कर लेंगे इन लोगों के साथ इंसाफ होगा। जब तक ये चीजें नहीं होती हम तो ये समझेंगे कि ये एक कागजी कार्रवाई है, ये एक जो है रवायती बयान है जो हुकूमत की जानिब से आ जाता है, यहाँ से भी आ गए हैं। क्या वज़ीर कानून साहब वहाँ पहुँचे, सही वहाँ गए हैं? वो भी इस वक्त तक वज़ीर कानून नहीं पहुँचे, कोई नहीं पहुँचा वहाँ पे, सवाए DC नवाब शाह के वहाँ पे कोई नहीं आया, और किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की कि उन लोगों के आंसू पूछने के लिए, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। चलो एक वाक़या है, हो गया है, मगर हुकूमती साइड के ऊपर से बिल्कुल कोई भी जीरो रेस्पॉन्स है। ये सिंध के शहरी थे, ये पाकिस्तान के शहरी थे, ये यहाँ के बेगुनाह लोग थे, ये मासूम शहरी थे। इनके खिलाफ जो कत्लेआम हुआ उसके लिए इस वक्त की जो निगरान हुकूमत है उसने क्या किया है, तो जवाब आएगा निल।
अच्छा जलवारी साहब, वो अहमद अली शेख का आज मेरे ख्याल में आखिरी दिन है। वो अपने दौर में बड़े नोटिस लेते रहे, अखबार में छपने वाली खबर किसी खातून के बारे में। तो ये 5 बेगुनाह अफराद मारे गए, 6 जख्मी हुए, जिनमें खवातीन भी शामिल है, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, क्या मसला है? मुझे जाते जाते कुछ असल में भाई देखें, सिंध के लोगों को पाकिस्तान का 3rd डिग्री का जो है ना वो शहरी समझा जाता है। आप नहीं बात कर रहे, आप जो बात कर रहे हैं ना सो मोटो जिनके लिए आपको सुनने भी तो सही, आप सुने भी तो सही ना, आप सुनने की भी तो बात रखें ना अपने पास, और ये मीडिया पर भी चलाएं जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कभी इतने बड़े गांव के ऊपर, एक ही फैमिली के ऊपर, कभी पाकिस्तान की तारीख में ये आया है कि किसी औरतों के ऊपर गोली चलाई गई हो? तो मैं उसी की बात आप बता रहे हैं ना, सो मोटो को किससे लेंगे, आप किससे लेंगे? जुडिशरी साहब, मैंने सो मोटो की बात मैं बात कर रहा हूँ, एक्शन मतलब सो मोटो ना। एक मिनट जवाब देता हूँ। इस वक्त तक जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस वक्त तक कोई भी ना तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तरफ से आया है, ना तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से आया है, जिसके लिए हम मुतालबा करते हैं कि हम आला अदालतों से गुजारिश करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए जो इस चीज के ऊपर आकर इन्वेस्टिगेशन करे कि इसके अंदर कौन कौन मुलविस है। और ये जब तक नहीं होता, हमें इन जो एजेंसीज अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और ये DIG और SP के ऊपर बनी है, अरे भाई जिन लोगों ने मोबाइलें भेजी, जो लोग उनके एड में गए, जो उनके साथ मुलविस थे कत्लेआम के अंदर, वो इंसाफ क्या करेंगे? वो फैक्ट फाइंड क्या करेंगे? वो कातलों को क्या पकड़ेंगे? वो जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनको जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये निगरान हुकूमत वफाई की या सूबाई नहीं करती तो सो मोटो के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, हम आपसे अपील करते हैं कि ये पाकिस्तान के शहरियों का कत्लेआम हुआ है, मासूम बच्चों का कत्लेआम हुआ है, औरतों का कत्लेआम हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, आज तक बेयार मददगार हॉस्पिटल्स के अंदर पड़े हुए हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। उनसे यहाँ तक कि कोई जाकर ये कह दे कि भाई आपके पास इलाज के पैसे हैं कि नहीं है, आपके पास ऑपरेशन के पैसे हैं कि नहीं है, आपके पास लाशों को ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस नहीं है, वो लोगों को चिंची रक्षा के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं। इससे बढ़कर और सूरत हाल क्या होगी? काजी फाजी साहब, आप हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम हैं, आप अच्छी शोहरत रखने वाले चीफ जस्टिस हैं, अल्लाह ताला ने आपको इस मनसब पे बिठाया है लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए। हम आपसे इंसाफ की तवक्का करते हैं, हम आपसे मुतालबा करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और एक हाजर सर्विस हाई कोर्ट के जज की सरबराही के अंदर इसको बनाया जाए, जिसके अंदर ये जो तमाम चीजें हैं ये रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। सीएम कराची में त मुख्तलिफ हदन ते पहुंचे तो सकन छो न पहुंचो है, जॾहिं उते FIR थी त FIR उन्हनि जे मथो दाख़िल छो न कई वई जेको इन ऑपरेशन के लीड करे पियो, ऐं पुलिस जी ॻाल्हि नथो कयां, पुलिस फेक एनकाउंटर में मुलविस हूंदी आहे त उनखे नॉमिनेट कयो वञे जेको इन ऑपरेशन के लीड करे पियो। जेको तव्हां सुवाल जो पहिरियों इहो सुवाल मूंखां ठहे कोन थो, इहो सुवाल चीफ मिनिस्टर को पुछे त तूं छो न वियो आहे हुते? हाणे जेकॾहिं वञे हा त सुठी ॻाल्हि आहे, न वियो आहे हुनजे बारे में उहो ई मौक़िफ़ ॾेई सघे थो, मां नथो ॾेई सघां। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेके फरियादी आहिनि उन्हनि जे मौक़िफ़ खे त उन्हनि लिखियो ई न आहे न, उहो त पुलिस पंहिंजो मौक़िफ़ लिखियो आहे, जंहिंसां फरियादी मुतमिन न आहिनि। अॼु आउं अलादात जलपाणी जंहिंजा पुट शहीद थिया आहिनि, जंहिंजे घर ते हमिलो थियो आहे, जंहिंजा फैमिली मेंबर ज़ख़्मी आहिनि, जेको सिविल हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर में 7 फ्लोर ते बेड नंबर 15 ते मौजूद आहे, ज़िंदगी मौत जी कश्मकश में हुनखे बि गोली लॻल आहे, हिकिड़े पासे खां लॻी आहे, ॿिए पासे खां क्रॉस कई वई आहे। अॼु न हुनखां बि पुछणु कोई न वियो आहे, होॾे सकरन ऐं माड़ी जलपाणी त परे हिते पियो आहे, जो हिते कोई हुकूमती एहलकार, कोई वज़ीर, कोई मशीर, कोई हुनखां वञी करे हाल पुछण जे लाइ तयारु कोन्हे, इलाज जे लाइ पुछण लाइ तयारु कोन्हे, त हीअ हुकूमती बेहसी चइबी छा चइबो। मां तव्हांजी तवसत सां सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स जे जेके एक्टिविस्ट आहिनि उन्हनि खे गुज़ारिश कंदुसि त हिन खां वधीक ॿियो ॾुखियो वक़्तु असांजे पाकिस्तान जे ऐं सिंध जे शहरनि ते ॿियो न ईंदो।
हिंदू के वक्त में अगर इस मुश्किल की घड़ी में हमारे ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट, हमारी सोशल जो अपना सिविल सोसाइटी है उसके एक्टिविस्ट और जो हमारे बकाया जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, अगर आगे नहीं आते तो कब आएंगे, कब करेंगे वो अपने लोगों की वारसी, तब वो आकर उनका पुरसान हाल पूछेंगे। हम आपके से भी गुजारिश करते हैं कि आपकी जितनी जर्नलिस्ट की आपकी तंजीमें हैं, आप उन एसोसिएशंस को गुजारिश करते हैं कि आप भी जरूर इसके ऊपर अपनी कमेटी बनाकर नुमाइंदों को भिजवाकर वहां पे जाकर ये चीजें मीडिया के तवज्जुह से दुनिया के सामने ले आएं, इस मामले को उजागर करें। ना सिर्फ मीडिया बल्कि जिंदगी के तमाम शोबों के साथ जितने भी लोग मुलविस हैं वो आगे आएं, अपना अपना रोल अदा करें और इसको यकीनी बनाएं कि आज जैसे माड़ी जलबानी में कत्लेआम हुआ है, कल किसी दूसरे पाकिस्तान के गांव में, सिंध के गांव में, बलूचिस्तान के गांव में, केपीके के गांव में, पंजाब के गांव में नहीं होगा। और ये कत्लेआम अगर मस्तूंग में जाकर ब्लास्ट किया है तो वो दहशतगर्द थे, उन्होंने सुसाइड अटैक किया है, वो नामालूम दहशतगर्द थे, उसके अंदर गैर मुल्की लोग मुलविस थे। ये तो भाई माड़ी जलबानी के अंदर तो हमारे अपने ही लोग थे, यहाँ के लोग थे जिन्होंने जाके ये कत्लेआम किया है, लोगों को कत्ल किया है। इसके लिए हम चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन का क़याम लाज़मी हो। जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी, जैसी मारा मारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी। मेरे दोस्तों को गुजारिश है कि इसी इशू के ऊपर कराची बार एसोसिएशन की जानिब से नीचे जनरल बॉडी का इजलास हो रहा है, आप हमारे साथ चलें और उसको भी कवरेज दें, दोस्तों का मौक़िफ़ सुनें और मीडिया की तरफ सनम के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सनम के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जारी आहे जारी रहंदी, जारी रहंदी। पंहिंजो मौक़िफ़ जी दोस्तों ॾिसो त अॼु असांजे सिंध बार काउंसिल जा उहिदेदार, कराची बार काउंसिल जा प्रेसिडेंट, सभई वकील केॾे तइदाद में हिते सभिनी नफ़रत जो इज़हार कयो, हिन ज़ुल्म सां ऐं बर्बरियत खे बिल्कुलु निंडियो वियो ऐं सभिनी जो मुतालबो आहे त जुडिशल कमीशन क़ाइमु कई वञे। ऐं हींअर वरी एहतजाज आहे, रोड ते दोस्त हलंदासीं ऐं बाक़ी कराची प्रेस क्लब वारो एहतजाज फ़िलहाल असां मुलतवी कयो आहे, छो त सम्झूं था त अञा डे बाय डे मुस्तक़िल असां हलणो आहे, हिकु ॾींहं में सभु एहतजाज कयल असां थकाईंदासीं न ऐं इंशाअल्लाह वरी भरपूर एहतजाज थींदो। तव्हां ऐं गुज़ारिश आहे त इन्हनि मासूमनि खे जे खून सां इंसाफ़ लाइ असांखे मुस्तक़िल बुनियादनि ते जिदोजहद करणी पवंदी ऐं इंसाफ़ जे हुसूल ताईं आख़िर ताईं जिदोजहद करणी पवंदी। वॾी महिरबानी।